Hi, my little champs. How is going on? I guess everybody is doing very well and enjoying it home. So, class 7th, Living English, Unit 4, Chapter Hope, Skip and Jump. In this chapter of Ratna Sagar publication, we are going to learn word to word explanation. And one thing I want to make you clear, this is the first part of this chapter. If you would like to watch, it's a second part in which I have already uploaded question answers with back exercise, so you may go to the channel and in the playlist you can watch that. In this video we are just going to clear it word to word explanation. You know what is given here? Hope, skip and jump. What do you mean by this? You know, you have seen there one picture, and what is the picture here? There is a street game picture is given. See, some children are playing here, as you are also playing in your streets at your house. And see, this is the game is given here. What game is here? Some numbering is written here, 1 2 3 4 5 6 7 8. Numbering is written here. One child is just hopping on one leg there, okay, and he just playing. So what is this? This is a street game. And you know, as we are also playing the game of gilli danda, okay, hide and seek, and many more games are there which we always use in the street games. And in the street games, we no need of a special space for that. We can even play indoor also. Indoor means like हमारे घरों के अंदर जो भी थोड़ा सा स्पेस होता है, हम उसके अंदर भी इनको खेल सकते हैं. जैसे स्ट्रीट गेम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे वो गेम्स जिनके लिए स्पेशली प्लेग्राउंड की जरूरत नहीं होती, जो हम अपने घर के अंदर भी खेल सकते हैं या घर के थोड़े से बाहर जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होते हैं वहां पे भी इनको खेल सकते हैं. सो लेट्स एंजॉय विद योर स्ट्रीट गेम्स, ओके. And I would like to say one thing more there. If you would like to subscribe the channel, you may go to the playlist and watch grammar related videos as well as writing section and this Ratna Sagar publication solution as well as word to word explanation also. You will find somehow two videos. One is of word to word explanation, second will be of question answers. But in case of a poem, you will get one video only in which a solution will also be given there, okay. So let's come and enjoy their street game. Here characters are not given, but I have just written only the game's name here, like hope, skip, jump, okay, and a street game. This is the street game. And one more thing, this is not played only in India, this is played all over the world there. No, you know, they are not saying that this is played only in India. These games are playing in all over the world there. So let's see what is given here. Hope, skip and jump, its introduction is given here. A street game is played on the streets rather than in an area specially prepared for it. Specially prepared for it means to say कि इन गेम्स को खेलने के लिए हमें जो है वो स्ट्रीट में हम इनको खेल सकते हैं. इनको किसी भी स्पेशल एरिया में, स्पेशल प्लेग्राउंड में जाकर के इसको खेलने की जरूरत नहीं होती. It is usually a simple playtime activity that children do in their neighborhood. ये वो simple activity होती है, ये वो play time होता है जब बच्चे normally अपने neighborhood में जाकर के अपने friends को इकट्ठा करके वहां पे खेल सकते हैं. As you have seen in the animation, देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे बच्चे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, little champs are there. So these little champs are playing street game, okay, and this street game is their hopscotch, and they are just playing their, how they are playing, what are the rules of playing the game. In this chapter we will come to know what is this game and what are the different names of this game in the other countries, in other states there, okay. And next, what are the rules of playing this one. So let's begin this one. The very first, the one street game every little child in India has played. इंडिया में हर कोई बच्चा ये स्ट्रीट गेम खेलता ही खेलता है. कौन सा? स्टापू, ओके, इकात, इक्का दुआ और किथी, कित, कित, कित. Means this is the name of a game in the rest of the states there, and kit kit is played all over India. ये जो kit kit का जो game है वो all over India के अंदर खेला जाता है, okay. Next is given, it is known as Kontabile in कर्नाटका. कर्नाटका में इसको क्या बोलते हैं? कोंटेबिले बोलते हैं इसको, ओके. यस, एंड नेक्स्ट इज गिवन पांडी इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में इसको किस नाम से बुलाते हैं? पांडी के नाम से, ओके. एंड टोकडू, इसको टोकडू बिला किस में बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश में इसको किस नाम से बुलाते हैं?
टोगडू बिला। मिस यू नो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनकी जो थोड़ी सी बोलने का वे है वो डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज गेम इज सेम हियर, राइट। एंड नेक्स्ट इज गिवन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको एक ही नेम से जाना जाता है, वो क्या है, टोकोडू बिला। एंड खाने इन कश्मीर, कश्मीर में इसको किस नाम से बोलते हैं, खाने के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। द गेम इज कॉल्ड हॉप स्कॉच। जो गेम है हम उसको बोलते क्या है वैसे, इस गेम का वैसे अगर हम इंग्लिश नेम बोले इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो हम इसको हॉप स्कॉच बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हॉप स्कॉच बोलते हैं। बट इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, किस लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। सो इंग्लिश में, या फिर आप बोल सकते हैं कि अदर जो स्टेट है वहां पर, अदर जो कंट्री है हम इसको क्या बोलते हैं, किस नेम से बुलाते हैं, हॉप स्कॉच के नाम से बुलाते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। भाई ये हमारे चाइल्डहुड का बहुत बड़ा पार्ट है, इसके बिना हमारा चाइल्डहुड जो वो पूरा नहीं होता। इट इज अ गुड गेम फॉर चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गेम होता है, बिकॉज इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इंडोर्स। ये ऐसा गेम है जो बच्चे इसके फेवरेट होते हैं, बच्चे इसको बहुत मन लगा के खेलते हैं, अपने नेबरहुड से बच्चों को बुलाते हैं और उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस। और क्योंकि हमें इसके लिए क्या चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी जगह चाहिए, ज्यादा जगह तो हमें चाहिए नहीं। देखो कितनी थोड़ी सी जगह में इसने ड्रॉ कर दिया, ग्रिड ड्रॉ कर दिया और आराम से खेलने लगे हुए, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा स्पेस ही चाहिए। और इसको हम अगर हमारे घर के अंदर रूम है तो रूम में हमारा क्या होता है, रूम में थोड़ा सा स्पेस है तो हम वहां पे भी इसको चौक लेके ड्रॉ करके खेलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आउटडोर मतलब स्ट्रीट में जहाँ पे कच्चा होता है, देखो कच्ची जगह जहाँ पे है, जैसे कच्चा है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब ये नहीं कि पक्का है, यहाँ पे कहीं पे कच्चा है, स्ट्रीट है, मड है, मिट्टी है, बिल्कुल प्लेन है, इस प्लेन जगह पे ये ड्रॉ करके आराम से इसको खेल सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या क्या होता है, अब देखिए भाई, A chalk is used to draw a grid. Grid क्या होता है, ग्रिड लाइंस होती है, इसे क्रॉस करके लाइंस बनाते हैं। देखो कैसे क्रॉस कर रखे हैं इन लाइंस को, ऐसे ही क्रॉस करके इनको लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और इसके लिए हमें चौक की जरूरत होती है। 8 स्क्वेयर्स ऑन ग्राउंड विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। हम 1 to लेकर 8 तक हम नंबर लिखते हैं ग्राउंड पे। जैसे देखो इसकी हिंट यहाँ पे दे रखी है, जैसे सबसे पहले लिखा 1, अगले स्क्वायर में लिखा 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे लिखा, फिर 6 लिखा, फिर ऐसे इस सेंस में 7 और 8 लिखा। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अकेला 6 है, फिर 7 और 8 इकट्ठा ऊपर लिखा हुआ है। मीन्स टू से ऐसे ही हमें ग्रिड बनानी है, ऐसे स्क्वायर या बॉक्स बनाने होते हैं चौक के साथ। और हम इसमें जो एक लेग से, 1 लेग से जंप करते हुए हम 1 by 1 जंप करते हुए यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि यहाँ पर 8 होते हैं एज इन दिस पिक्चर, जैसे इस पिक्चर में आपको गिवन है। टू प्ले द गेम, गेम प्ले करने के लिए अ प्लेयर नीड्स अ मार्कर, उसको एक मार्कर की, एक निशान की जरूरत होती है। सच एज अ फ्लैट स्टोन, हम जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैट स्टोन। आपको पता ना, छोटा सा स्टोन होता है, स्टोन का एक फ्लैट सा टुकड़ा हम ले लेते हैं, उसको हम मार्कर बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्लैट सा पीस होता है स्टोन का, जिसको हम ऊपर से अपने सर के ऊपर से करके फेंकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्टोन का फ्लैट पीस होता है, इसको हम यहाँ पे मार्कर बोल रहे हैं। उसी को हम क्या करते हैं, जैसे बैक करके उससे जैसे हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया, तो इन लाइंस को, इन स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद बैक करके हम खड़े हो जाते हैं और एकदम से उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने के बाद क्या है कि हाँ ये कहीं ना कहीं जाकर गिरता है और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर यहाँ पर उसको जंप करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। सो ये गेम है जिसमें हमें एक स्मॉल फ्लैट पीस चाहिए स्टोन का, और जिसमें क्या होता है उसके बाद हम इसको खेलना शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट, और आ शेल, या फिर हमें शेल चाहिए, कोई शेल मिल जाए हमें, या फिर कोई स्टोन का थोड़ा सा फ्लैट टुकड़ा मिल जाए हमें, तो हम उसको मारकर बना लेते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, जो प्लेयर होता है, जो खेलने वाला है, वो खड़ा कहाँ पे होता है, बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, जो पहली लाइन होती है उसके पीछे खड़ा हो जाता है। एंड टॉस, और टॉस करता है, उछालता है इस मार्कर को, इस स्टोन के पीस को अपने सर के ऊपर से इनटू द फर्स्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर में वो फेंक देता है इसको। देन शी होप्स ऑन 1 फुट, और उसके बाद फिर वो एक टांग पे, ये नहीं कि दोनों पैरों से चलना, तो उसको एक पैर पे जंप कर करके एक स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर में, फर्स्ट स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर में वो यहाँ से जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ग्रिड क्या होता है, एक पैटर्न होता है जो स्ट्रेट लाइंस उसके ऊपर होते हैं, और यूजुअली ना उनको क्रॉस कर देते हैं हम, क्रॉस जैसे होता है, देखो कैसे काट रखा है, क्रॉस कर रखे हैं लाइंस को, तो ऐसे हम इनको क्रॉस कर देते हैं, उनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। और इसकी जो शेप है वो स्क्वायर होते हैं। देखो यहाँ पर एक बॉक्स लगा के चलो, इसकी शेप स्क्वायर है।
अलग से देखो इसकी शेप स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर शेप में ही ड्रॉ करना होता है। मार्कर क्या होता है? अ काउंटर यूज्ड फॉर प्लेइंग द गेम। एक ऐसा काउंटर होता है, एक ऐसा स्टोन होता है, एक ऐसा शेल होता है जिसको हम जैसे फ्लैट होता है, क्योंकि अगर वो जैसे हमें ऊपर से फेंकते हैं तो आराम से वो जच जाए, तो इसलिए हम इसको फ्लैट की फॉर्म में ही लेते हैं। नेक्स्ट इज लेटरल। लेटरल मीन्स साइड बाय साइड, तो साइड बाय साइड वो यहाँ पर खेलते जाते हैं। एजिलिटी, एजिलिटी होता है एबिलिटी। एजिलिटी किस लिए होता है? एबिलिटी होते है टू मूव, मतलब हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए मूव करने की, यहाँ से इधर से उधर, मतलब एक लेग के ऊपर जंप करने की। ईज एंड क्विकनेस, ईज भी होनी चाहिए, हमें इजीनेस भी फील होना चाहिए, कंफर्टेबल भी हो, और क्विकनेस भी होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो उसके फटाफट से इसको कवर करें। नेक्स्ट हमारी क्या होती है? निबलनेसनेस। निबलनेसनेस क्या होती है? स्विफ्टनेस होती है या फिर लाइटनेस होती है मूवमेंट की, कि हमें लाइट लाइट मूवमेंट्स को इसमें रखना होता है, क्योंकि हमारा जो लेग है वो इन लाइंस को टच नहीं करना चाहिए। लाइंस को टच करते हम यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। वेरिएंट मींस होते हैं वर्जन। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर। One and continue, one and continue hopping till the 18, one and continues होपिंग टिल द 8 स्क्वायर। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं? पहले स्क्वायर में जंप करते हैं, उसके बाद सेकंड स्क्वायर में जंप करते हैं, और ऐसे कंटिन्यू जो वो 8 स्क्वायर तक वो ऐसे जंप करते हुए जाते रहते हैं। एट द 8th स्क्वायर, जब वो 8 स्क्वायर में पहुंच जाते हैं, शी टर्न्स अराउंड अगेन, वो अराउंड करती है, दोबारा से क्या करती है? वो एक टर्न लेती है, मुड़ जाती है। होप्स, दोबारा से फिर एक ही पैर पे छलांग लगाते लगाते जंपिंग करते करते अपने स्क्वायर में आ जाते हैं, टिल द सेकंड स्क्वायर, जब तक कि वो सेकंड स्क्वायर में नहीं पहुंच जाती। हियर द पोजेज एंड पिक्स अप द मार्कर। अब वो क्या करती है? यहाँ पर पोज लेती है, थोड़ा खड़ी होती है, और फिर वो क्या करती है? पिक्स, उसको उठा लेती है। किसको? उस मार्कर को, उस स्टोन को उठा लेती है। कहाँ से? फर्स्ट स्क्वायर में से। देखो सबसे पहले उसने फर्स्ट स्क्वायर में उसको डाल दिया था स्टोन को, उस फर्स्ट स्क्वायर में स्टोन को डाल दिया था। उसके बाद वो एक लेग से जंप करते हुए सारे 8 स्क्वायर तक वो जंप करते हुए चलते रहते हैं। उसके बाद दोबारा से फिर टर्न करती है, फिर से 8 7 6 5 4 2 पे आ जाते हैं। 2 पे आते हैं, फिर से वो क्या करते हैं कि जो पहले वाले स्क्वायर में उसका जो स्टोन पड़ा होता है उसको वो उठा लेते हैं, जो फ्लैट स्टोन होता है उसको उठा लेते हैं, और फिर वो उससे बाहर निकल जाते हैं। देन शी टॉसेस द मार्कर इनटू द सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद वो सेकंड स्क्वायर में उसको टॉस करते हैं। मींस कहने का कि देखो पहले उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने ये ग्रिड लाइन से ड्रॉ की। सबसे पहले यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8, ऐसे इन्होंने ग्रिड लाइन में स्क्वायर शेप में इसको बना दिया। उसके बाद इनमें हर एक में डिफरेंट डिफरेंट नंबरिंग डाल दी, 1 से लेकर 8 तक डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद उसने क्या किया? जो लड़का है वो स्टार्टिंग लाइन के पास खड़ा हुआ जहाँ पे 1 था, उसने ऊपर से उसको जंप, उसको टॉस किया, उछाला, और पहले वाले स्क्वायर में आकर के वो गिर गया। अब उसने क्या किया? एक लेग पे जाकर के उसने सारे इन बॉक्सेस को कवर किया, फिर से वापस आएगा, कवर करेगा, और उसको सेकंड स्क्वायर वाले बॉक्स में खड़ा होकर उसको उठा लेगा पहले वाले स्क्वायर में से। हाँ जी, अब बाहर निकल गया। फिर टर्न आते फिर दूसरे वाले स्क्वायर में डालेगा, फिर ऐसे जंप करते करते 8 तक आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर थर्ड स्क्वायर में खड़ा होकर सेकंड वाले में से उठाएगा, फिर उसकी टर्न आएगी, फिर थर्ड वाले में फेंकेगा उस स्टोन को। मींस कहने का कि ऐसे कर करके वो मतलब हर एक में स्टोन को फेंकेगा, और अगर उसका स्टोन हर एक स्क्वायर में अच्छे से पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचता तो वहां से आउट हो जाता है। तो ये आपका गेम होता है, और ये जो गेम है इसकी जो कंटिन्यू चलता रहता है इसी तरह से। कैसे कंटिन्यू? पहले स्टोन फेंकते हैं फर्स्ट बॉक्स में, सारे स्क्वायर को कवर करके दोबारा से आ जाते हैं, फिर सेकंड स्क्वायर में फेंकते हैं, फिर थर्ड में फेंकेंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट में। अगर कोई बच्चा 8 तक इसको कवर कर जाता है तो इट मींस वो विक्ट्री हासिल करता है यहाँ पे। ओके, और अगर बाहर चला जाता है वो, तो उसके बाद तो फिर आउट हो जाते हैं यहाँ पे। until all 8 squares have been played and the player completes the round successfully। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सक्सेसफुली उसको वो प्ले कर जाता है। all the hopping is done on the 1 foot। और जो सारी की सारी जंपिंग चलती है ना, इसकी होपिंग करता है, जो ये उछल उछल के चलता है, that will be done only on 1 foot। ये एक ही फुट पे होता है, 2 legs वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। unless there are 2 lateral squares। बेशक यहाँ पर क्या है, कुछ lateral squares है यहाँ पे। अब लेटरल स्क्वायर क्या होता है? साइड बाय साइड कुछ स्क्वायर्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो उसको क्या है कि एक ही लेग का यहाँ पे उसको यूज करना होता है। वेयर द प्लेयर्स हैज टू लैंड ऑन बोथ फिट। वेयर द प्लेयर हैज टू लैंड ऑन बोथ फिट, मतलब जो जहां पर की जो प्लेयर है वहां पर अपने दोनों फिट रख सकता है। जहां पर डबल है, देखो यहाँ पर जैसे डबल है तो यहाँ पर दोनों फिट रख सकता है, लेकिन फिर भी विद 1 foot इन ईच स्क्वायर, लेकिन हर एक में उसको एक ही फुट से जाना होता है।
होप्स कोच इज सिंपल बट इट इज अ गेम ऑफ स्किल। भाई सिंपल है बहुत गेम, लेकिन बहुत स्किल वाला गेम है। कैसे? इट रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स एबिलिटी, इसमें फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो बड़े फटाफट से एक्टिवली वो क्या कर सकते हैं, बड़े एक्टिवली इसमें वो इसको पूरा करके वापस आ सकता है। निबललेसनेस एंड टेस्ट द प्लेयर्स बैलेंस। निबललेसनेस मीन्स क्या था यहाँ पर, कि वो अपने लाइट लाइट मूवमेंट्स के साथ यहाँ पर आगे बढ़ता है और टेस्ट लेता है और क्या करता है, प्लेयर्स को के साथ अपना जो प्लेयर्स होते हैं वो बैलेंस अपना बना के रखते हैं और प्रिसीजन करते हैं। प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर प्रिसीजन नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं होगी, तो वो गेम से बाहर निकल जाएगा। अ प्लेयर इज कंसीडर्ड आउट इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट स्क्वायर। और एक बात मैंने जैसे आपको पहले बोली कि अगर जो मार्कर है, जो स्टोन है, जो फ्लैट स्टोन है, वो प्रॉपरली उस स्क्वायर के अंदर नहीं जाता और टच कर देता है बॉर्डर को। देखो जैसे ये है, उसने स्टोन, मान लो कि उसने 3 तक लेवल क्रॉस कर दिए, अब की बारी है कि उसने स्टोन को फेंकना है 4th वाले पार्ट में। तो ये जो 4th वाला पार्ट है, अगर उस वो जो स्टोन फेंक रहा है, वो स्टोन अगर इस बॉर्डर को टच कर गया तो आउट हो जाएगा। और अगर इस बॉर्डर के बिल्कुल अंदर अंदर रहा तो वो दोबारा से फिर जंप करता हुआ 8 तक आएगा, 8 से फिर दोबारा वापस आके 5 तक, 5 में खड़ा होकर फिर वो 4 में से स्टोन उठा लेगा। ऐसे उसकी टर्न आएगी, फिर 5 में फेंकेगा उस स्टोन को, फिर वो 6 में 7 8 में जाएगा, फिर 8 7 6 में जाकर के फिर वो 5 में से उसको उठा लेगा स्टोन को। तो ऐसे जो है चलता रहता है। और एक्सीडेंटली अगर क्या होता है कि बॉर्डर पे टच हो गया, इन लाइंस पे टच हो गया, तो वो क्या होता है, आउट हो जाता है। देर आर सेवरल अदर रूल्स। अब देखो यहाँ पर भाई रूल्स भी सेपरेट होते हैं और तो इनमें थोड़ा चेंजेस भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा अगर आप फन ऐड करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरिएशन आप थोड़ा सा चेंज इसके अंदर कर सकते हो एंड डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। मैनी फॉर्म्स ऑफ हॉपस्कॉच आर प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड। मींस अक्रॉस द वर्ल्ड मैनी हॉपस्कॉच आर प्लेड। भाई बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम से खेला जाता है, बट थोड़े थोड़े से वेरिएशन रूल्स के अंदर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत रूल वो चेंज कर लेते हैं, बट पैटर्न यही सेम रहता है। इट इज कॉल्ड ले ले इन पर्शियन। पर्शियन में इसको ले ले के नाम से बोलते हैं भाई इस गेम को। अब फ्रेंच, फ्रेंच इसको वेरिएंट के नाम से भी बोलते हैं। ओके और स्नेल जैसे स्नेल के नाम से, और इकार गोट बोलते हैं, या फिर मार्ले राउंड बोलते हैं, जैसे राउंड होता है, राउंड हॉट स्पॉच होता है। तो कहने का मीन्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ इसको बुलाया जाता है। इन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड दिस इज कॉल्ड हेमल। ओके इसको हिमल के नाम से बुलाते हैं। किसमें? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। एंड होली, हेवन और हेल। होली किसको बोलते हैं? हेवन और हेल को बोलते हैं। तो हिमल और होल के नाम से इन कंट्रीज में इसको बुलाया जाता है। सो दीज आर द स्टेट गेम्स हियर। यूजुअली द फर्स्ट स्क्वायर इज कोल्ड। जो यूजुअली हमारा फर्स्ट स्क्वायर होता है हम उसको बोलते क्या है? इरेट। इरेट या फिर अर्थ बोलते हैं। देखो जो हमारा सबसे पहला स्क्वायर होता है, जैसे ये गेम है यहाँ पे, और यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 फर्स्ट बॉक्स होगा यहाँ पे, उस फर्स्ट स्क्वायर का नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं फर्स्ट स्क्वायर को? हम उस फर्स्ट स्क्वायर को बोलते हैं इरेट। ओके व्हाइल द सेकंड टू लास्ट स्क्वायर इज टू होली। इसको मतलब इसको होल बोलते हैं, फिर हेल बोलते हैं। किसको? पहले वाले जो स्क्वायर है उसको हम क्या बोलते हैं? इरेट बोलते हैं। बट सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 ये जो सारे स्क्वायर हम इनको क्या बोलते हैं? हेल बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज हिमल। जो लास्ट वन होता है हमारा उसको हम हिमल बोलते हैं या फिर हेवन बोलते हैं, इस लास्ट वाले को, 8th वाले को। तो फर्स्ट और लास्ट जो वो डिफरेंट है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं इरेट, लास्ट वाले को बोलते हैं हेवन, और बीच वाले सेकंड से लेके 7 तक, सेकेंड टू 7 इनको हम क्या बोलते हैं? हेल बोलते हैं। इनका नेम रखा हुआ मीन्स इन स्क्वायर्स का। द नंबर्स हॉपस्कॉच गेम इज अ फन वेरिएशन ऑफ एन ओल्ड फेवरेट। मीन्स ये बहुत ही फेवरेट है, और ये जो हॉपस्कॉच गेम है ये बहुत ही फनी गेम होता है। इसको हर बच्चा खेलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। यू डोंट नीड टू टॉस अ स्टोन और यूज अ मार्कर फॉर दिस वेरिएशन ऑफ हॉपस्कॉच। तो इसमें क्या, ये जो है इसने कहा कि यू डोंट नीड टू टॉस, आपको अब इसमें टॉस करने की जरूरत नहीं है स्टोन को, एंड यूज अ मार्कर या फिर मार्कर को यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस वर्जन, इस वर्जन के लिए। किसके लिए? हॉपस्कॉच के लिए। अब थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन इन्होंने कर दिया, थोड़ा रूल्स को चेंज कर दिया। तो अब इसमें क्या है कि जस्ट कीप होपिंग ऑन 1 फुट। आपको क्या करना है, अब ये जो इन्होंने हॉपस्कॉच बोला है, जो हमारा ये जो गेम ये बता रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला जाता है, इस गेम में क्या होता है कि ये एक यहाँ पर अब ये क्या करते हैं, मार्कर को यूज नहीं करते। किसको यूज नहीं कर रहे?
मार्कर को यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी स्टोन को यूज नहीं करी। अब इन्होंने थोड़ा वेरिएशन कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज क्या इसके अंदर कि जस्ट कीप होपिंग, वो सिर्फ एक लेग के ऊपर मतलब सारे बॉक्सेस को क्रॉस करते हुए जाएगा। स्टेप ऑन द रॉन्ग स्क्वायर, अगर उसका स्टेप रॉन्ग स्क्वायर के अंदर चला गया ओके तो वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ओके सो ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन द रॉन्ग स्क्वायर, रॉन्ग स्क्वायर में जाने की ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। ट्राई इट आउट, मेक इट ट्रिकर for other players by making them put their hands behind and their back। अब इसमें देखो इसने क्या चेंज किया, यहाँ पे जो होप्स कोच है गेम, इसके अंदर इन्होंने क्या चेंज कर दिया। देखो रूल्स इसने पहले ही बोला था कि आप इसके रूल्स के अंदर थोड़ा चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा फन बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पर ये उस मार्कर को, उस स्टोन को यूज नहीं कर रहे, अब यह क्या कर रहे हैं, मेक इट ट्रिकर। अब इसने इसको ट्रिकर बना दिया, ट्रिक बना दी इसकी फॉर अदर प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स के लिए, बाय मेकिंग दैम पुट देयर हैंड्स। वो क्या करते हैं, इसको उनके हैंड्स को पीछे, कहते हैं कि पुट योर हैंड्स बैक, उनके जो हैंड्स है वो बैक साइड में करवा देते हैं। एंड जंप ओनली ऑन इवन और ऑड नंबर्ड स्क्वायर इन सीक्वेंस। अब देखो कैसे कह रहे हैं, सबसे पहले उनके हैंड्स को बैक पे करवा देते हैं, उनके हैंड्स बैक पे हो जाते हैं। कीप देयर हैंड्स बैक साइड, बैक साइड हो गए उनके हैंड्स। उसके बाद क्या करते हैं, या तो उनको ओड नंबर्स में जंप करना होता है या फिर इवन नंबर वाले स्क्वायर में इनको जंप करना होता है, वो भी सीक्वेंस में। तो देखो हैंड्स पीछे करके इसको बना दिया ट्रिकी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी भी इसको बना देते हैं। अब इसने कहा कि देखो ये जो होप्स कोच है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ी वेरिएशन किए गए। वो कैसे, देखो है तो नंबरिंग वही है, बॉक्सेस वही है, ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर देखो चेंज कैसे किया इसने। यहाँ पे क्या किया, अब इसमें चौक की जरूरत होती है, एक स्पेस की जरूरत होती है थोड़ी सी कहीं जगह पे, और उसके बाद आप क्या करते हो, मेक अ ग्रिड ऑफ 12 स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 स्क्वायर नहीं है, इसमें इन्होंने चेंज क्या किया, जो होप्स कोच गेम है इसमें चेंज क्या है कि मतलब यहाँ पर 12 स्क्वायर होंगे। देखो 1 से लेकर के और 12 तक स्क्वायर होंगे, लेकिन जो इनके जो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बने इनमें नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं डालनी। अब इन्होंने चेंज कर दिया, इसके अंदर नंबरिंग जो सीक्वेंस में वो नहीं डालते। देखो क्या लिखा है, मेक अ ग्रिड ऑफ 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर की एक ग्रिड बनानी, भाई 12 स्क्वायर के 12 बॉक्सेस हमने यहाँ पे बना दिए ग्राउंड के ऊपर। स्क्वायर ऑफ 2x2, 2x2 फीट का वो स्क्वायर होना चाहिए, इसकी जो विड्थ और लेंथ है 2x2 की होनी चाहिए। आर अ गुड साइज, ये एक गुड साइज होता है। सेकंड क्या होता है, नंबर द स्क्वायर। अब स्क्वायर्स को आपने नंबर देना है 1 to 12, बट डोंट नंबर दैम इन सीक्वेंस में नहीं डाला कि जैसे 1 है 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, नहीं। 1 है तो 1 के बाद 5 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, कुछ भी लिखो, बट ये सीक्वेंस नहीं बननी चाहिए प्रॉपर यहाँ पे। लेकिन ये भी है कि एक नंबर दोबारा से रिपीट नहीं होगा और एक भी नंबर छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपने आप से रेंडमली कहीं पे किसी बॉक्स में कोई भी नंबर डाल दो तो ये आपका गेम हो जाता है। थर्ड क्या है, होप ऑन 1 फुट। भाई अब भी इनको क्या करना है, एक ही फुट के ऊपर उनको क्या करना है, यहाँ पर होप करना है, जंप करते हुए जाना है। किसमें, नंबर 1 से, फिर स्क्वायर नंबर 2 पे जंप करो, जहां नंबर 3 है वहां पे जंप करना पड़ेगा। सोन मीन्स कहने का इसमें देखो क्या चेंज किया कि पहले में तो कंटिन्यूसली थे, देखो इसमें तो क्या था, पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 कंटिन्यूसली दे दिया। भाई कंटिन्यूसली वो जंप करता जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कैसे कॉम्प्लिकेटेड कि एक तो उसने स्क्वायर को 12 ले लिया, कितना ले लिया, स्क्वायर्स को इतने 12 लिया। उसके बाद नंबरिंग भी इसने डिफरेंट डाल दी। नंबरिंग में क्या किया कि जैसे नंबरिंग की सीक्वेंस चेंज कर दी इसने। यहाँ पे क्या सीक्वेंस चेंज की, जैसे पहले 1 डाल दिया तो 1 के बाद सीक्वेंस नहीं डाली, 1 के बाद इसने 3 डाल दिया, 4 यहाँ डाल दिया, 2 यहाँ डाल दिया, 8 यहाँ डाल दिया, 5 यहाँ डाल दिया, मीन्स नंबरिंग इसने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। उसके बाद गेम क्या है कि पहले सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर पे जाओगे, फर्स्ट से जहां भी सेकंड नंबर लिखा ना वहां पे जंप करोगे, सेकंड से थर्ड पे जंप करोगे, फिर 4 पे जंप करोगे। अब फिर देखो 4 के बाद सीधा 5 पे जंप करो, फिर 6 पे करो, फिर 7 पे जंप करो, फिर 8 पे जंप करना। अब 8 से 9 पे जंप करो, 9 से 11 पे, 9 से 10 पे, 10 से 11, 11 से 12। तो ऐसे क्रॉस करते हो, मतलब जाना तो सीक्वेंस में है लेकिन ये नंबरिंग आपको सीक्वेंस में नहीं डालनी इस गेम के अंदर। तो इसके अंदर जो ये चैप्टर है आपका, इसके अंदर यही गिवन है कि कैसे आपके गेम के अंदर वेरिएशंस होते हैं और कैसे आपके चेंजेस होते हैं। So it was all about your chapter, and one more line is given there, that is such traditional games act as a learning aids। और ये जो ट्रेडिशनल गेम्स हमारे होते हैं वो हमें क्या करते हैं, एक्ट एज ए लर्निंग एड्स। हमें जो लर्निंग की एड सिखाते भी, हमें लर्निंग कैसे करनी चाहिए। दे टीच अस मैनी थिंग्स, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। टू लर्न टू विन, हमें
जीतना सिखाते हैं, हमें खोना सिखाते हैं, हमें ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल को पहचानना सिखाते हैं, डेवलप करते हैं हमारे अंदर सेंसरी स्किल्स को, हमारी सेंसेस को डेवलप करते हैं, ये हमारे इंप्रूव करते हैं, मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। मोटर स्किल्स मीन्स कि ये हमारी जो भी थिंकिंग की पावर होती है, जो हमारी क्विकनेस की पावर होती है, उसको डेवलप करती है। हैंड आई स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड और आई का कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसको कोऑर्डिनेशन को सिखाती है। प्लानिंग करना सिखाते हैं कि कैसे प्लान करके हम इसको जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं। थिंक लॉजिकली, और लॉजिकली सोचना सिखाते हैं हमें। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, टू हैव फन। भाई और तो क्या कहें कि लेकिन हम फन में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। कोऑर्डिनेशन हम सीख गए यहाँ पे, हैंड टू मतलब बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन सीख गए, ठीक है। उसके बाद हमने लॉस मतलब गेम अगर हम हार जाते तो कैसी फीलिंग आती है, फिर हम अगर जीत जाते तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, फिर हम हमारी सेंसेस हमारी कैसे काम करती हैं, हम कैसे अपने उसको डेवलप करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे अपनी स्किल्स को मतलब इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स कहने और कैसे हम प्लानिंग करें, कैसे लॉजिकली हम सोचे और कैसे हम क्या करें, अपनी चीजों को प्लान करें कि हमें विक्ट्री हासिल करनी है करनी है करनी है। तो ये ना केवल गेम है, ये हमारी जो स्किल्स है उसको इंप्रूव करता है, एज वेल एज ये फन भी है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में क्या था, आपको बताया गया कि जो स्ट्रीट गेम्स है वो कैसे कैसे डिफरेंट नेम से डिफरेंट स्टेट के अंदर बोले जाते हैं, ना केवल इंडिया के स्टेट में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर जस्ट प्लेइंग द सेम गेम, बट समवेयर वी आर जस्ट चेंजिंग द रूल्स देयर, वी आर चेंजिंग द रूल्स देयर, so that's why we are playing the same game but the rules are different there, and how to play I told you everything there. If you would like to watch its a solution, then you can go to the playlist and check its a solution, because every video is given here, uploaded here, but solution also given somewhere there, so check the playlist. Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day everybody.